Hello everyone, welcome to Simran's channel. So we are meeting after a long time, and today the subject which I am taking is accountancy and financial management. Now everyone knows, whoever is related to commerce field, what is accountancy. But the students who are into FIJC and SYJC, that is junior college, they do not know what is the meaning of financial management or the exact meaning of financial management. So I think in my previous video I had explained what is financial management, but again I'm explaining. Financial management is basically to assess the company's position. So I will give you an example. If there are two companies, say A and B, okay, both deal in, both of them are the sellers and the manufacturers both. So basically what they manufacture and sell is for example, say Parle-G biscuits. Now the question is, how do we identify that which company is better? Now see, biscuits, Parle-G biscuits are same only, whether A manufacturer and seller sells or B. But we have to see at what price A is selling the Parle-G biscuits and B is selling the Parle-G biscuits. How is the quantity? Okay, what is the quantity? How fresh it is? Everything we have to see. Now you will tell me, ma'am, we go in any shop, we will get biscuits of Parle-G from rupees 10 to 30. I agree with it. But there are certain shops which also sells it at rupees 5. So now here we have to weigh that which biscuit, which seller or the manufacturer sells us at the smallest price. And also if you see the Parle-G biscuits, each and every packaging is same, but the freshness, the quality is different. Okay, because it is on the storage capacity of the seller or the manufacturer. How does a seller or a manufacturer store the biscuits? How well they maintain the biscuits? Because after all, it is a perishable product. Perishable means which can be used only for a certain period of time. After that, if we if we consume it, it would be hazardous for our health. Okay, so now for example, A is giving me Parle-G biscuits from range 10 and 20. Means A is giving me only two options. Either I will get a 10 rupees packet of Parle-G biscuit, or either I'll get for rupees 20. Now let's go to the B. Now B shop is offering me Parle-G biscuits for rupees 5 and rupees 20. Now what is the difference here? If I go to A, I will directly purchase rupees 10 or either 20 rupees biscuit, because I don't have the option of rupees 5 that I will get the biscuit for rupees 5. But similarly, if I go to B, I don't have the option of rupees 10, but I have a small option which is rupees 5. And now if I want the biscuit, the amount of biscuits which I get in rupees 10 packet, I can purchase it, because I can add 5 rupees, which will equal to 2 packets. And in fact, it will equal to 2 packets, so I can give 1 packet to my friend and 1 I can consume. So for me, as an individual perspective, the B seller is selling me at a good price, because the second price is same in both the shops. Now the next thing is that ये तो होगा कि कौन से प्राइस पे उन्होंने ऑफर किया. ओके, ऑफर प्राइस और ऑफर प्रोडक्ट फॉर सेल. ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट ये है कि ए और बी कंपनी का स्टैटिस्टिक्स मार्केट में क्या है, फाइनेंशियली वो कैसे, कहाँ खड़ा रहता है कंपनी. तो अगर मैं बोलूं ए कंपनी का टर्नओवर 1 ईयर का है रुपीज 10 करोड़ एंड बी का है रुपीज 15 करोड़, तो यहां मैं समझ जाऊंगी दैट द कंपनी ए इज लेस फाइनेंशियली स्टेबल, बिकॉज टर्नओवर मीन्स द नेट प्रॉफिट ऑफ बी इज मोर देन ए. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब यही होता है
कि हम अकाउंट्स के द्वारा with the help of accounts, with the help of maintaining the accounts, we assess the financial position of a company or of multiple companies. Now I am going to start with a new fresh topic in accounts. I just wanted to explain you all one more time that what was accountancy and financial management. इसलिए मैंने आज वापस से ये एक्सप्लेन किया है. अगर आप मेरे पहले वाले वीडियोस में देखोगे, अकाउंट्स के वीडियोस में, तो आप ये देखोगे ये टॉपिक जो है अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्चुअली टॉपिक नहीं सब्जेक्ट का नाम है ये, उसको मैंने एक्सप्लेन इसी तरीके से किया है. मैं बता दूं ये ज़्यादा जो आपको प्रेवलेंट मिलेगा ये सब्जेक्ट, ये आपको अकाउंटेंसी विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में मिलेगा, जिससे हम कहते हैं यूजी कोर्सेज. मीन्स 13, 14 एंड 15, 11, 12 तक आपको सिर्फ अकाउंट्स एज अ नेम मिलता है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई भी उसका कंसर्न नहीं होता है. सो आफ्टर 12th इफ यू चूज कॉमर्स फील्ड एनी मे से नेम इट, BMS, BAF, BCom, BBI, this subject is very common and prevalent. Okay, so I will start with the sum. Just give me a minute. I will just rough the board. Okay, so the topic which I am teaching you all today is consignment. Consignment chapter. Now, what is consignment? Basically, consignment is a contractual basis पे वो होता है between a seller and an agent. Okay, so say example Reena and Meeta. Now, Reena is the consignor and Meeta is the consignee, and the contract between them is consignment. I will explain you all in an easy way. Consigner is Reena, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं रीना हूँ, मुझे कुछ गुड्स सेल करने हैं. ओके, बट मैं रहती हूँ फॉर से महाराष्ट्र में, मुझे बाकी स्टेट्स में भी सेल करना है. ऑनलाइन तो मेरे पास एक ऑप्शन डेफिनेटली है, बट अगर मुझे ऑफलाइन भी सेल करना है तो मैं तो हर बार नहीं जा सकूंगी बाकी स्टेट्स में. तो मैं क्या करूंगी, एक एजेंट रख दूंगी. ठीक है, एक मिडिलमैन रख दूंगी. फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र और कोल्हापुर ये दोनों जगह पे अपना ये जो बिस्किट्स का है मैं रन करती हूँ बिजनेस. अब मैं तो रहती हूँ महाराष्ट्र में, अब कोल्हापुर में तो मैं बार बार जा नहीं सकूंगी. तो मैं क्या करूंगी, एक मिडिलमैन यानी कि एक एजेंट को रखूंगी जिसका नाम है मीता, हु इज द कंसाइनी. So who is the consigner? The owner of the business. Who is the consignee? Agent. अब हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा. कंसाइनर बोलेगा, कंसाइनी सुन, तू मेरा इतना काम कर दे कि तुम कोल्हापुर जाओ और ये बिस्किट्स बेचो एंड यू विल गेट अ कमीशन ऑन दैट. अब कंसाइनर का क्या यानी ओनर का क्या बेनिफिट है, क्योंकि उसको तो इवेंचुअली कमीशन उल्टा देना पड़ा कंसाइनी को. तो प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट ये हुआ कि डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट प्राइजेस एंड इट द बिजनेस इज एक्सपांडिंग मोर. यानी कि जो मैं यहाँ तक ही पहले सीमित थी महाराष्ट्र, अभी मुझे चांस मिला अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का, तो मैं कोल्हापुर में भी सेल कर रही हूँ, वो भी एक नॉमिनल फी पे जिसको हम कहते हैं कमीशन, और आई एम गिविंग अ कमीशन टू द कंसाइनी एंड आई एम अर्निंग गुड प्रॉफिट. सो इट्स गुड फॉर मी बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सपांड माई बिजनेस. तो कंसाइनर ने, ओनर ने कंसाइनी को जब कंसाइनमेंट यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि तू मुझे 200 बॉक्सेस या चलो 20 बॉक्सेस ऑफ पार्ले जी बिस्किट सेल करके दे, तो जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है वो तो मुझे मिल रहा है, बट अब एजेंट बोलेगा कि सर मैं आपका काम कर रहा हूं तो मुझे भी तो कुछ चाहिए, तो वो क्या लेगा, रिवॉर्ड के तौर पे कमीशन. तो ये एक शॉर्ट पीरियड फॉर शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है. आप लॉन्ग पीरियड तक ऐसे नहीं करोगे. तो ये क्वेश्चन अराइज होगा कि लॉन्ग पीरियड तक क्यों नहीं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सक्सेसफुल इन कोल्हापुर, सपोज आई एम सक्सेसफुल इन कोल्हापुर, तो मैं वहां पे डायरेक्टली अपना एक ब्रांच खोल दूंगी. अब उस ब्रांच पे मैं मे बी कोई अपने फैमिली मेंबर को, कोई अपने फ्रेंड को या किसी और को रख दूंगी टू वो बिजनेस रन करे एंड जो प्रॉफिट्स है वो मैं कमाऊंगी. मैंने मिडिल मैन को इसीलिए रखा है अभी बिकॉज कंसाइनमेंट में क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ एंड टेस्ट कर रही हूँ. तो एक कंसाइनमेंट को आप ट्रायल एंड टेस्टिंग पीरियड भी बोल सकते हो कि आपका प्रोडक्ट उस स्टेट में कितना वर्क कर रहा है, कितना प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो. ओके,
और वहां पे कंज्यूमर के क्या प्रेफरेंस, टेस्ट, चॉइस है। टेस्ट का मतलब खाने का नहीं मैं बोल रही हूँ, बट नॉर्मली लाइक दे लाइक पार्ले जी बिस्किट्स या कुछ भी, ठीक है। अभी टेस्ट आप क्लोथिंग में भी यूज कर सकते हो। बेसिकली टेस्ट मीन्स द चॉइस एंड द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स। हाउ मच आर दे विलिंग टू पे, आर दे विलिंग टू पे मोर देन दे आर पेइंग इन महाराष्ट्र, कि उससे भी कम, विल इट बी बेनिफिट फॉर मी और नो। तो ये सब जो क्वेश्चंस है आपको एक टेस्ट एंड ट्रायल मेथड से ही पता चलता है। सो फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी नीड द हेल्प ऑफ द कंसाइनी हु इज द एजेंट। सो कंसाइनर इज द ओनर एंड कंसाइनी इज द एजेंट। ये दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम बोलते हैं सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंसाइनमेंट। तो आज मैं एक सम करवाऊंगी प्रैक्टिकल, ये तो मैंने आपको थ्योरी एक्सप्लेन किया है। सो जस्ट अ मिनट, आई विल डू अ सम टुडे। Okay, so I have the book with myself. Ratanlal consigned 500 boxes of tea costing ₹100 per box to Sohanlal. Consigned यानी कि ओनर ही सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट देता है, और कॉन्ट्रैक्ट देने को क्या बोलते हैं, कंसाइंड। सो रतनलाल ने सोहनलाल को 500 बॉक्सेस कंसाइन किया और एक बॉक्स ₹100 का था। Ratanlal paid freight ₹500, ₹200 and sundry insurance ₹200 and sundry expenses ₹80. He drew a bill of exchange on Sohanlal and received it from Sohanlal, duly accepted for ₹10,000. Now, the bill was discounted with the bank by giving a discount of ₹100. क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले तो हम वो देखेंगे कि रतनलाल ने सोहनलाल को एक क्या कहते हैं, कंसाइन किया सोहनलाल को। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि रतनलाल कौन है, कंसाइनर। सोहनलाल कौन है, सोहनलाल कंसाइनी, यानी कि ये एजेंट है और ये ओनर है। तो रतनलाल ने सोहनलाल को बोला कि मुझे 500 बॉक्सेस है टी के, और एक बॉक्स जो है वो ₹100 का है। तो मैं सिंपली क्या करूंगी, 500 इंटू 100 कर दूंगी टू गेट द टोटल विच इज 50,000। 500 बॉक्सेस है इंटू 100 कर दूंगी, क्योंकि एक बॉक्स ₹100 का है। ऐसे सोहनलाल को 500 बॉक्सेस बेचने हैं, तो 50,000, यानी कि 50,000 का टोटल प्रॉफिट कौन अर्न करेगा, कंसाइनर हु इज रतनलाल। बट सब में एक कैच है, तो मैं बाद में बताऊंगी। पहले तो रतनलाल ने उसको बोला 50,000 का मुझे प्रॉफिट चाहिए, साथ में रतनलाल को कुछ एक्सपेंसेस भी पे करने पड़े, जैसे कि कन्वीनियंस चार्जेस हो गया, विच वाज आई थिंक फ्रेट को हम बोलते हैं कन्वीनियंस चार्जेस। फ्रेट मतलब आने जाने का खर्चा, अभी ट्रक व्रक में भेजना तो पड़ेगा ना सामान, तो उसका 500 रतनलाल ने ही पे किया। अच्छा, उसके बाद इंश्योरेंस, गुड्स को इंश्योर भी तो कराना पड़ता है कि गुम नहीं हो जाए, उसका 200 भी रतनलाल ने पे किया। और उसने डिस्काउंट भी दिया, किसको, ₹100 का, उसने डिस्काउंट भी दिया है ₹100 का। और सन्ड्री एक्सपेंसेस एंड 80 ही ड्यू, ओके, सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑफ 80, यानी ये सब कुछ कौन इनकर कर रहा है, रतनलाल। सो वापस हम समझेंगे, रतनलाल ने सोहनलाल को एक कंसाइनमेंट दिया कि आप मुझे 500 बॉक्सेस ऑफ टी सेल करके दो एट 100 ईच बॉक्स, यानी कि रतनलाल को 50,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए। बट उसके साथ उसने उसको अदर चार्जेस भी दिया सोहनलाल को, कि आने जाने का जो, जिसमें भी मैं आप टी का बॉक्स डालोगे या आप जाओगे, तो उसके लिए उसने कन्वीनियंस चार्जेस यानी कि फ्रेट ₹500 दिया रतनलाल ने। इंश्योरेंस भी करवाया कि अगर कभी गुम हो गया, कुछ खराब हो गया, तो मैं इंश्योरेंस क्लेम भी आपको करवा के देता हूँ, तो वो 200 का करवा के दिया। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस यानी कि छोटे मोटे खाने पीने के खर्चे ₹80, वो भी रतनलाल ने सोहनलाल को दिया। अब क्या है ₹100 डिस्काउंट का, वो मैं आपको बताती हूँ। आप बोलोगे ₹100 डिस्काउंट भी तो दिया, यस, रतनलाल ने सोहनलाल को ₹100 का डिस्काउंट दिया, पर किस पे, जो 10,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज उसने एक्सेप्ट किया था। सोहनलाल को रतनलाल ने एक एडवांस अमाउंट दिया था 10,000 का,
उस पे भी उसने उसको 100 रुपीज का डिस्काउंट दिया, यानी कि उसको 9,900 का टोटल बिल दिया। ये 9,900 ये आपका ये आपका एडवांस है। सो कीप 9,900 विद यू। सो दिस डिस्काउंट इज रिगार्डिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, मैं सम तो नेक्स्ट ऑफ कोर्स क्लास में सॉल्व करूंगी, बट मैं सिर्फ ये बता देती हूँ, इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। अब जो रतन लाल ने क्या बोला सोहन लाल को कि आप 500 बॉक्सेस 100 में बेचो, पर सोहन लाल ने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपना ऑफकोर्स माइंड यूज करता हूँ, बिकॉज अब मुझे उसने एज अ कंसाइनी एज एन एजेंट अपॉइंट किया है। सो ऑफकोर्स ही हैज सीन द स्किल्स इन मी, सो लेट्स ट्राई माई स्किल्स एंड फाइंड आउट। तो इसने क्या किया, सोहन लाल ने 300 बॉक्सेस भेजे 150 रुपए के, ठीक है। अभी भले उसने 500 बॉक्सेस दिए, अभी आप कोई सेलर अपने शॉप में बैठा होता है, नॉर्मल, मैं एक नॉर्मल शॉप में बैठी हूँ, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मेरे सारे गुड्स मैं कंप्लीट करूँ, कुछ लेफ्ट ओवर भी रह जाते हैं, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 500 बॉक्सेस थे 100 के, तो उसने क्या किया, उसने बोला मैं 500 तो नहीं बेच पाऊंगा, तो उसने क्या किया, 500 तो वो नहीं बेच पाएगा, तो उसने क्या किया 300 बॉक्सेस 150 में बेचा, 300 बॉक्सेस 150 में बेचा। सो अगर आप देखोगे 45,000 का प्रॉफिट अर्न किया किसने, रतन लाल ने, विद द हेल्प ऑफ द एजेंट हु इज सोहन लाल। नाउ इट इज अ वेरी गुड आइडिया व्हाट सोहन लाल डिड, बिकॉज अगर वो 100 रुपीज में बेचता तो उसको 30,000 प्रॉफिट पड़ता है, यानी 20,000 का लॉस होता है। यहाँ पे उसका खाली 5,000 का लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि सोहन लाल ने थोड़ा टैक्टिक्स से चला, उसने बोला ठीक है अगर मैं सब तो नहीं बेच पाऊंगा, ठीक है सब तो मैं नहीं बेच पाऊंगा, लेकिन जितना बेच पाऊंगा थोड़ा इंक्रीज करके प्राइस बेचूंगा, बिकॉज मुझे पता है वहां पे लोग मुझे इतना प्राइस पे करेंगे। तो उसने अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज अपनाई और 45,000 में बेचा। ऑफकोर्स सम तो मैं बाद में सॉल्व करूंगी, बट एक चीज मुझे बोलनी है कि यहाँ पे हमने क्या सीखा, भले ही प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ रतन लाल को, जो है कंसाइनर, जो है ओनर, बट उसको एटलीस्ट पता चल गया कि वो कितने रेट्स पे कोई भी स्टेट में सेल कर सकता है। सो फॉर एग्जांपल कोल्हापुर की मैं बात करूं तो रतन लाल अब कोल्हापुर में बेच सकेगा, वो भी एक अच्छे प्राइस पे। बस अब उसको एक प्राइस सेट करना है और प्रोडक्ट्स के साथ, एंड मिनिमम प्रोडक्ट्स एंड प्राइस, एंड देन ही विल सेल। सो नाउ इतना तो रतन लाल को पता चल गया कि इट्स ओके, मेरे फुल गुड्स तो नहीं जाएंगे, देन ही आल्सो नोज, बट जो प्राइस उसने सेट किया था उससे 50 रुपीज ज्यादा ही सोहन लाल ने बेचा है। सो टुडे आई विल कंप्लीट योर, एंड ये सम को सॉल्व अगर आपको चाहिए मैं करके दूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, वरना मैं आपको आगे जाके ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगी ऑफकोर्स, बिकॉज अगर सम सॉल्व करना है इट टेक्स टाइम, एंड इफ रियली पीपल वांट टू सी मी सॉल्विंग द सम, दे वांट द हेल्प विद द सम, दे कैन डेफिनेटली put in comment section. Please don't forget to like, share, subscribe my channel, and please share positivity.